An elementary school classroom in a slum. Summary and translation in Hindi. Summary of the poems. The poet presents a pathetic picture of a classroom in a slum school. The slum is far away from the seashore and the natural surrounding. Children living in slums are underfed, underdeveloped and untouched by the civilized world. The maps of the world and pictures of great persons on the walls of the classroom are meaningless to these children. For them, the narrow lanes outside the classroom windows, the dusty sky and the heaps of rubbish are their world. The poet urges the educated and civilized people of the society to break all the barriers and lead them to green fields and pastures of knowledge to make them a part of the civilized world. People who are possessed with the warmth and power of the sun can make history. कविता का सारांश कवि गंदी बस्ती क्षेत्र के एक स्कूल के कक्षा कक्ष की दयनीय तस्वीर प्रस्तुत करता है। गंदी बस्ती समुद्र तट और प्राकृतिक वातावरण से बहुत दूर है। गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे अल्पपोषित, अल्पविकसित और सभ्य समाज से वे अछूते हैं। कक्षा कक्ष की दीवारों पर लटके संसार के नक्शे और महान लोगों की तस्वीरें उन बच्चों के लिए निरर्थक हैं। कक्षा कक्ष की खिड़कियों से बाहर तंग गलियां, धूल भरा आकाश और गंदगी के ढेर उनका संसार है। कवि शिक्षित और सभ्य समाज के लोगों से अपील करता है कि उनको शिक्षित और सभ्य बनाने की सभी रुकावटों को दूर कर दे तथा उन्हें सभ्य समाज का एक भाग बनाने के लिए उन्हें हरे भरे मैदानों और ज्ञान के नए की नई चरागाहों में ले जाएं। जिन लोगों के पास सूर्य की गर्माहट और ताकत है, सुख सुविधाएं हैं, वे ही इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। Word meanings, Hindi translation, questions on comprehension and appreciation. Stanza 1. Far, far from gusty waves these children's faces. Like rootless weeds, the hair torn around their pallor. The tall girl with her weighed down head. The paper-seeming boy, with rat's eyes. The stunted, unlucky heir. Of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson, from his desk. हिंदी अनुवाद समुद्र की तूफानी झोंकेदार लहरों से दूर इन बच्चों के पीले रंगीन चेहरे पर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए बाल व्यर्थ झाड़ियों की तरह दिखाई पड़ते हैं। वह लंबी लड़की उदासी से अपना सिर नीचे झुकाए हुए है। वह कागज की तरह अत्यधिक दुबला पतला और चूहे जैसी आंखों वाला लड़का जो अविकसित है और अपने माता पिता की विकृत टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है, जिसे ये बीमारी माता पिता से मिली है। असल में वह अपने डेस्क पर अपना पाठ नहीं बल्कि अपने पिता की किसी गांठदार बीमारी का वर्णन कर रहा। Reference: These lines have been taken from Stephen Spender's poem, An Elementary School Classroom in a Slum. Context: the poet here describes the sorrowful state of children in a school of slum. He especially mentions a boy and a girl to convey the sense of gloom and helplessness that these children experience so early in their life. Explanation: the children are sitting in a classroom in a school of slum. They are unaffected by the faraway stormy waves of the sea of hope. Their uncombed and disheveled hair spread on their pale faces. They appear like rootless wild plants. A tall girl is sitting with her head bowed down by countless worries. A thin boy with rat-like eyes looks as if his physical growth had stopped. Unfortunately, he has inherited the disease of twisted bones from his father. He is not reciting a lesson from his desk, but he seems to be telling about some naughty disease of his father. संदर्भ: ये पंक्तियां स्टीफन स्पेंडर द्वारा रचित कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से ली गई हैं। प्रसंग: कवि यहाँ एक गंदी बस्ती के विद्यालय में बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन करता है। वह विशेषकर एक लड़के व एक लड़की पर ध्यान केंद्रित कर इन बच्चों में व्याप्त अंधकार व मजबूरी की वेदना दर्शा रहा है, जो वे इस अल्पायु में अनुभव करते हैं। व्याख्या: बच्चे एक गंदी बस्ती के विद्यालय की कक्षा में बैठे हैं। वे समुद्र की दूरस्थ झोंकेदार लहरों आशा से अप्रभावित हैं। उनके बिना कंघी किए हुए बेतरतीब बाल उनके चेहरों पर जड़हीन जंगली पौधों के समान टी रहे हैं। एक लंबी लड़की असंख्य चिंताओं से ग्रस्त अपना सिर झुकाए बैठी हुई है। एक चूहे जैसी आंखों वार बहुत दुबला लड़का ऐसा लगता था जैसे उसका शारीरिक विकास रुक गया हो। दुर्भाग्य से विकृत हड्डियों की बीमारी उसे उत्तराधिकार में अपने पिता मिली है। वास्तव में वह अपने डेस्क पर अपना पाठ नहीं बल्कि अपने पिता की किसी गांठदार बीमारी का वर्णन करता हुआ लग रहा है। Stanza 2. At back of the dim class. One unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game, in tree room, other than this. Word meanings: dim equals faintly visible, धुंधली, कम रोशनी वाली. Unnoted equals not noticed, जिस पर ध्यान न गया हो. Squirrel, गिलहरी. Tree room equals place made in a tree, वृक्ष के तने के अंदर की खोखली जगह, कोटर. हिंदी अनुवाद: कम रोशनी वाली कक्षा में पीछे एक छोटा प्यारा सा बच्चा बैठा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है।
उसकी आंखों में एक सपना दिखाई देता है। वह स्वप्न कल्पना देखता रहा है कि उसके नीरस कक्षा कक्ष से अलग वृक्ष पर बने अपने निवास स्थान पर स्वतंत्रता से एक गिलहरी खेल रही है, वह भी अपने लिए। इसी तरह के एक कमरे की कल्पना करता है जो कि इस कमरे गंदा स्कूली कक्ष से एकदम भिन्न हो। Reference: These lines have been taken from Stephen Spender's poem, An Elementary School Classroom in a Slum. Context: here the poet speaks about a sweet, little boy with dreamy eyes who is sitting at the back of the class. Explanation: here a sweet little child is sitting at the back of the dimly lit classroom. He is unnoticed because of the gloom. He seems to have dreams in his eyes. He dreams about the way a squirrel is playing in its treehouse nest on the tree. He wants and imagines a similar place for himself that is quite different from this dirty classroom. संदर्भ: ये पंक्तियां स्टीफन स्पेंडर द्वारा रचित कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से ली गई हैं। प्रसंग: यहाँ कवि एक प्यारे से छोटे बच्चे के विषय में बताता है जो स्वप्निल आंखें लिए कक्षा में पीछे बैठा। व्याख्या: एक प्यारा सा छोटा बच्चा कम रोशनी वाली कक्षा में पीछे बैठा हुआ है। वह अंधेरे के कारण दिखाई नहीं देता है। लगता है उसकी आंखों में सपने हैं। वह एक गिलहरी की तरह खेलने का स्वप्न देखता है जो पेड़ पर अपने घर घोंसले में खेल रही है। वह अपनी कल्पना में एक ऐसे ही स्थान की चाह रखता है जो इस गंदे कक्षा से बिल्कुल अलग हो। Stanza 3. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head. Cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. Belled, flowery, Tyrolese valley. Awarding the world its world. Word meanings: sour equals here unpleasant, apriya ya asuhavna. Donation equals things given in charity, दान में दी गई वस्तुएं. Dawn equals early morning before the sunrise, उषा काल, भोर. Civilized dome equals here institutions of the civilized world, सभ्य समाज की संस्थाएं. Belled equals having bells, घटियां रखे हुए. Tyrolese valley equals valley in Tyrol in Austria. Austria की टायरोल घाटी. Open-handed map equals here map of the world redrawn by the dictators at their own will. तानाशाहों द्वारा फिर से अपनी इच्छानुसार बनाया हुआ दुनिया का नक्शा. Its world equals the world is partitioned by the conquerors. वह संसार जैसा कि विजेताओं ने अपने हिसाब से बांटा है. हिंदी अनुवाद: अप्रिय क्रीम रंग की दीवारों पर दान में दी गई वस्तुएं और शेक्सपियर के चेहरे की तस्वीर टंगी है. भोर का समय है और आसमान भी साफ है. सभ्य समाज की संस्थाओं के गुंबद सब शहरों के ऊपर दिखाई देते हैं. टायरोल घाटी की ये संस्थाएं घंटियों के संगीत और फूलों से भरी हुई हैं. संसार के इस मानचित्र को खुले हाथों से तैयार किया गया है, हिटलर जैसे तानाशाहों की इच्छानुसार, और इस संसार के लोगों को एक नया संसार तानाशाहों की इच्छा पर आधारित भेंट किया जा रहा है. Reference: These lines have been taken from the poem, An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. Context: these lines describe the decoration on the walls of the classroom, which show pictures of another unknown world. Explanation: the classroom walls are painted in an unpleasant cream color. It was done by donation. There are pictures of Shakespeare's head, buildings with dome, world maps and beautiful valleys on the walls of the classroom. These things are quite meaningless for these slum children. It is morning and the sky is clear. The domes of civilized educational institutions shine in all the cities. The Tyrol Valley in Austria is resounding with the music of church bells and the fragrance of flowers. Powerful people, dictators like Hitler, redraw the map of this alien world as they wish. However, all this is meaningless to these slum children, as they do not see any place for themselves on this map. संदर्भ: यह पंक्तियां स्टीफन स्पेंडर द्वारा रचित कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से ली गई हैं. प्रसंग: यह पंक्तियां कक्षा की दीवारों पर लगी सजावट का वर्णन करती हैं जो एक अन्य अनजान संसार को दर्शाती है. व्याख्या: कक्षा की दीवारें एक अप्रिय मटमैले रंग में पुती हैं. यह दान द्वारा किया गया है. कमरे की दीवारों पर शेक्सपियर के चेहरे का चित्र, गुंबद वाली इमारतों, संसार के नक्शों तथा सुदन घाटियों के चित्र टैगे हैं. यह वस्तुएं गंदी बस्ती के बच्चों के लिए अर्थहीन हैं. सुबह का समय है और आसमान साफ है. सभ्य समाज के संस्थानों, शैक्षणिक के गुंबद सभी नगरों में चमक रहे हैं. ऑस्ट्रिया की टायरोल घाटी गिरजाघर की घंटियों व फूलों की सुगंध से गुंजायमान है. शक्तिशाली लोग, हिटलर जैसे तानाशाह, इस अनजान संसार के मानचित्र को इच्छानुसार बदलते हैं. यद्यपि यह सभी इन गंदी बस्ती के बच्चों के लिए निरर्थक है क्योंकि उन्हें इस मानचित्र में अपने लिए कोई स्थान नहीं दिखता है. Stanza 4. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky. Far, far from rivers, capes and stars of words.
Word meanings, these children equals children in this slum school, गंदी बस्ती के विद्यालय के ये बच्चे. Fog equals thick mist, कोहरा या धुंध, here symbol of uncertain or dark future, यहाँ अनिश्चित या अंधकारमय भविष्य का प्रतीक. Sealed in equals closed in, अंदर की तरफ बंद. Lead sky equals here bluish gray sky, नीला धूसर आसमान. Far equals away from, दूर. Caps equals places of high land sticking out into the sea, अंतरीप. हिंदी अनुवाद लेकिन गंदी बस्ती के विद्यालय के इन बच्चों के लिए यह संसार अमीरों, विजेताओं और तस्वीरों का उनका अपना नहीं, बल्कि गंदी बस्ती के विद्यालय की ये खिड़कियां ही उनका अपना संसार हैं. उनका भविष्य धुंध से पुता हुआ है, अर्थात अनिश्चितता व अंधकार से भरा हुआ है. वे अपने जीवन की ऐसी तंग संकरी गली, जो कि आगे बंद कर दी गई है, में बंद हो गए हैं. इसको एक धूसर नीले आसमान ने चारों ओर से घेर लिया है. ये बच्चे नदियों, अंतरीपों और सितारों जैसे शब्दों से बहुत दूर हैं. भाव यह है कि जिन बच्चों के लिए थोड़ी खुली जगह मिलना दुर्लभ है, उनके लिए प्रकृति की ये चीजें अर्थहीन हैं. Reference: These lines have been taken from the poem, An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. Context: the poet draws a contrast between the world outside and the world of the slum children who sit within a dreary room in dreary surroundings. Explanation: the poet says that for these slum children, the world of riches, conquerors and strange pictures that is shown on the walls is alien. Their sight is limited to the windows of their classroom. Their world is dark and uncertain. They are bound to live in these narrow, dirty streets. They cannot see the beautiful outside world. Their lanes are closed in by the faded, blue sky. Words like rivers, capes and stars are meaningless to them. Their fate is sealed in these slums. संदर्भ: यह पंक्तियां स्टीफन स्पेंडर द्वारा रचित कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से ली गई है. प्रसंग: कवि इन पंक्तियों में बाहर के संसार व गंदी बस्ती के उन बच्चों के उस संसार के मध्य विरोधाभास दिखाता है जहां वे गंदे वातावरण में एक गंदे कक्ष में बैठे हैं. व्याख्या: कवि कहता है कि इन गंदी बस्ती के बच्चों के लिए जो संसार, धन दौलत, विजेताओं व विचित्र तस्वीरों का संसार इन दीवारों पर प्रदर्शित है, एक अनजान संसार है. उनकी दृष्टि उनकी कक्षा की खिड़कियों तक सीमित है. उनका संसार अंधकार में व अनिश्चित है. वे इन संकरी, गंदी गलियों में रहने के लिए बाध्य हैं. वे बाहर के सुंदर संसार को नहीं देख सकते हैं. उनकी गलियों को एक धूसर नीले आकाश ने चारों ओर से घेर लिया है. नदी, अंतरीप व घाटियां जैसे शब्द इन बच्चों के लिए अर्थहीन हैं. उनका भाग्य इन गंदी बस्तियों में बंद है. Stanza 5. Surely, Shakespeare is wicked, the map a bad example. With ships and sun and love tempting them to steal. For lives that slyly turn in their cramped holes. From fog to endless night. Word meanings: surely equals definitely, निश्चित रूप से. Shakespeare is wicked equals for the children of slums. The portrait of the great dramatist Shakespeare is meaningless. वेस्ट ऑफ ट्रेंट के रहने वाले बच्चों के लिए महान नाटककार शेक्सपियर का चित्र अर्थहीन या बुरा लगने वाला है. Tempting equals alluring, प्रलोभित, लालच देना, कर रहे. To steal equals to steal away those comforts and run away secretly. चुपके से इन चीजों को लेकर भाग जाना. Slyly equals cleverly, चालाकी से. Crimped equals narrow, संकरी, तंग. Holes, मांद. Endless night, कभी समाप्त न होने वाली रात, अनंत अंधेरी रात. हिंदी अनुवाद: निश्चित रूप से शेक्सपियर का चित्र इन बच्चों के लिए अर्थहीन या बुरा लगने वाला है और मानचित्र भी एक गलत उदाहरण है. जहाज, सूर्य और प्यारी वस्तुएं व प्यार से भरा हुआ संसार इन बच्चों को चोरी करने के लिए, जिससे कि वे इन सब प्यारी चीजों को पा सके, प्रलोभित करते हैं. कोहरे से अनंत अंधेरी रात तक, जीवन के आरंभ से अंत तक, इनका जीवन चालाकी से इन तंग मांदों, संकरी गलियों में व्यतीत हो जाता है. Reference: These lines have been taken from the poem, An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. Context: the poet here wants to convey the meaninglessness and irrelevance of the map and pictures hanging on the walls of the classroom of slum school. Explanation: according to the poet, the picture of Shakespeare is certainly meaningless to the slum children. The world map is also useless for these children as they find no place of their own in this world. This world has beautiful things like ships, human love and the sun, but this lovely world is beyond the reach of these children. So these slum children are tempted to steal these things from this world. From birth to death, these slum children are confined to live in these crowded spaces. Their existence begins in the fog of uncertainty and ends in the endless darkness of death. संदर्भ: यह पंक्तियां स्टीफन स्पेंडर द्वारा रचित कविता
एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, से ली गई हैं। प्रसंग, यहाँ कवि उन चित्रों व मानचित्रों की निरर्थकता व अप्रासंगिकता को दर्शाता है, जो इस गंदी बस्ती की कक्षा की दीवारों पर टंगी हैं। व्याख्या, कवि के अनुसार शेक्सपियर का चित्र निश्चय ही इन गंदी बस्ती के बच्चों के लिए निरर्थक है। संसार का मानचित्र भी इन बच्चों के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि उस संसार में ये बच्चे स्वयं के लिए कोई स्थान नहीं पाते हैं। इस संसार में जहाजों, मानव प्रेम व सूर्य जैसी अनेक सुंदर वस्तुएं हैं, किंतु यह संसार इन बच्चों की पहुंच से बाहर है। इसी कारण यह बच्चे इन सुंदर वस्तुओं को चुराने के लिए लालायित रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक ये मलिन बस्ती के बच्चे इन संकीर्ण कोठरियों में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हैं। इनका अस्तित्व अनिश्चितता की धुंध से आरंभ होकर मृत्यु के अंतहीन अंधकार में समाप्त होता है। Stanza 6. On their slag heap, these children were skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. Word meanings: slag equals waste material, kabada, gandagi. Heap equals pile, ढेर. Peeped through equals here emerging, झांकना या बाहर आना. Spectacles equals eyeglasses, चश्मे. Mended glass equals मरम्मत किए हुए शीशे वाले. Bits equals pieces, टुकड़े. Foggy equals full of fog, कोहरे वाला कोहरा छाया हुआ. Slum equals dirty settlements or dwellings, झुगी झोंपड़ियां. Blot equals blemish, कलंक. They map equals maps with places for the rich, अमीरों के स्थान के मानचित्र. Doom equals ruin, hell, बर्बादी या नरक. हिंदी अनुवाद, गंदगी के ढेरों पर बैठे हुए इन बच्चों की त्वचा में से उनकी हड्डियां झांक रही हैं। और ये मरम्मत किए हुए शीशों वाले स्टील के चश्मे पहने ऐसे लगते हैं जैसे पत्थरों पर बोतलों के टूटे हुए टुकड़े। उनका सारा समय और स्थान इन्हीं नरक जैसी गंदी बस्तियों में बीतता है, गुजरता है। ये झुगी झोपड़ियां इन बच्चों के लिए जिंदा नरक हैं, और यह सभ्य मानचित्र पर एक कलंक है जिसे अमीर व बड़े लोगों ने बनाया है। Reference: These lines have been taken from Stephen Spender's poem, An Elementary School Classroom in a Slum. Context: the poet describes the hopelessness and futility that the slum children experience in their impoverished and underfed childhood. Explanation: according to the poet, these slum children live and wander among heaps of waste. They are so thin and undernourished that their bones stick out of their skins. They wear repaired spectacles with broken glasses which look like pieces of broken bottles on stones, such is their poverty. Their entire time and living space is confined to the foggy slum, which is a living hell for them. These slums are a big blot on this world of wealthy and powerful people. संदर्भ: यह पंक्तियां स्टीफन स्पेंडर द्वारा रचित कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से संकलित है। प्रसंग: कवि यहाँ उस निराशा व निरुद्देश्यता को वर्णित करता है जो ये गंदी बस्ती के बच्चे अपने निर्धन, कुपोषित बाल्यकाल में अनुभव करते हैं। व्याख्या: कवि के अनुसार ये गंदी बस्ती के बच्चे कचरे के ढेरों के बीच रहते और घूमते हैं। वे इतने पतले, दुबले व कुपोषित हैं कि इनकी हड्डियां इनकी त्वचा से बाहर झांकती हैं। वे मरम्मत किए हुए टूटे ग्लास वाले चश्मे पहनते हैं जो पत्थरों पर पड़े बोतलों के टूटे टुकड़ों के समान दिखते हैं। वे इतने निर्धन हैं। उनका संपूर्ण समय व निवास स्थान इस धुंध भरी गंदी बस्ती में सीमित है, जो उनके लिए एक जीवित नर्क है। ये गंदी बस्तियां धनाढ्य व शक्तिशाली लोगों के संसार पर बड़ा धब्बा है। Stanza 7. Unless governor, inspector, visitor. This map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town. Word meanings: governor equals here the government that opens these schools, सरकार जो झुगी झोंपड़ी के स्कूल खोलती है। Inspector equals staff that inspects these schools of slums, लोग जो इन गंदी बस्तियों के स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। Visitor equals great personalities who visit these schools, सम्मानित व्यक्ति जो इन स्कूलों को देखने आते हैं। This map equals the map of the world made by the civilized and powerful people of the world. संसार का मानचित्र जो सभ्य और शक्तिमान लोगों ने बनाया है। Their windows equals the windows of the slum classroom which allow no light from the educated and civilized people of the society. झुगी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए स्लम स्कूल की कक्ष की खिड़कियां जो सभ्य और शिक्षित समाज की तरफ से कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं आने देती हैं। Shut upon their lives equals prove hindrance in their progress, उनकी उन्नति में रुकावट बनते हैं। Catacomb equals underground graves, तहखाने की कब्र। हिंदी अनुवाद: सरकार जो गंदी बस्ती के स्कूलों को खोलती है, निरीक्षक लोग जो इन गंदी बस्ती के स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, तथा सम्मानित व्यक्ति जो इन स्कूलों को देखने आते हैं,
उनसे कवि यह अपील करता है कि वे इस मानचित्र को बाहर के संसार को देखने की खिड़की बना दें। खिड़कियां जो तहखाने की कब्रों के समान उनके लिए बंद हो जाती है, उनको सारे बंधनों को तोड़ दें। Reference: These lines have been taken from the poem, An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. Context: the poet sends out an appeal to the people who have created these slums to break the division between these abodes of the deprived and the world of the wealthy and joyous. Explanation: the poet appeals to the government, inspector, visitors and people responsible for managing the slum school to do their duties honestly. He asks them to bring the slum children into the real world, and to make them an integral part of the mainstream of the civilized society. He believes that the barriers between the slums and the affluent world should be broken, and if not, the slum dwellers would one day break the so-called civilized structure of urban society. संदर्भ: इन पंक्तियों को स्टीफन स्पेंडर द्वारा रचित कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से लिया गया है। प्रसंग: कवि इन पंक्तियों में उन लोगों से आग्रह करता है जिन्होंने इन गंदी बस्तियों को बनवाया है कि वे वंचितों के इन आवासों, गंदी बस्तियों तथा धनाढ्यों व प्रफुल्लित लोगों के संसार के मध्य के विभाजन को समाप्त कर दें। व्याख्या: कवि प्रशासन, निरीक्षकों व आगंतुकों तथा उन सभी लोगों से जो इन गंदी बस्तियों के विद्यालयों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं, यह विनती करता है कि वे अपना दायित्व ईमानदारी से निभाएं। वह उनसे कहता है कि वे गंदी बस्ती के बच्चों को बाहर की वास्तविक दुनिया में ले आएं व उन्हें सभ्य समाज की मुख्यधारा का अभिन्न हिस्सा बनाएं। वह मानता है कि गंदी बस्तियों व धनाढ्य संसार के मध्य के अवरोधों को हटा देना चाहिए, अन्यथा एक दिन गंदी बस्ती के निवासी इस शहरी समाज की तथाकथित सभ्य व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। Stanza 8. And show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books the white and green leaves open. History theirs whose language is the sun. Word meanings: show the children green fields equals take the slum children into the lap of nature. इन गंदी बस्ती के निवासी बच्चों को प्रकृति की गोद में ले जाओ। Make their world run azure on gold sands equals take these children to the beach where particles of sand shine like gold in the rays of the sun and the waves of blue azure water break on the beach. इन बच्चों को समुद्र तट पर ले जाओ जहां सूर्य की किरणों में रेत के कण सोने की तरह चमकते हैं और नीले समुद्री पानी की लहरें समुद्र तट पर टूटती हैं। झुग्गी झोपड़ी की कोठरियों के अंधकार से निकल वे यह दृश्य देखेंगे और आनंद अनुभव करेंगे। Let their tongues run naked into books, open, equals these children should be free to have first-hand knowledge from the books and the nature equals इन बच्चों को पुस्तकों और प्रकृति से स्वयं पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। Whose language is the sun equals whose language has the warmth and power of the sun equals जिनकी भाषा में सूर्य के समान गर्माहट, जोश और शक्ति होती है। हिंदी अनुवाद: कवि इन झुग्गी झोपड़ी के स्कूल के प्रशासन से संबंधित सभी व्यक्तियों से अपील करता है कि इन बच्चों को वे झुग्गी झोपड़ियों के गंदे वातावरण से बाहर खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकालने में सहयोग दें। उन्हें हरे भरे खेत देखने दें और वे स्वच्छ आकाश के नीचे सुनहरी रेत पर उनको दौड़ने में सहयोग करें ताकि वे इस संसार में अपना स्थान बना सकें। उनको स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने का अवसर प्रदान करें। केवल वे व्यक्ति ही इतिहास रचते हैं जिनकी भाषा में सूर्य की ऊष्मा और शक्ति है। Reference: These lines have been taken from the poem, An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. Context: the poet here exhorts the people in power to help make the lives of the slum children beautiful and give them a bright future. Explanation: the poet appeals to the people in power to make efforts in bringing the slum children out of these suffocating surroundings and allowing them to breathe in open, clean air. Their horizon should extend to the blue sky rising over the golden sands. Gates of knowledge must be opened for these children and they should be encouraged to speak freely. The poet believes that only those people create history whose voice has the warmth and strength of the sun. संदर्भ: यह पंक्तियां स्टीफन स्पेंडर द्वारा रचित कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम से ली गई हैं। प्रसंग: कवि यहां सत्ता में बैठे लोगों से आह्वान करता है कि वे गंदी बस्ती के बच्चों के जीवन को सुंदर बनाने में सहायक हो व उन्हें एक स्वर्णिम भविष्य दें। व्याख्या: कवि यहां सत्ताधारियों से आग्रह करता है कि वे गंदी बस्तियों के बच्चों को इस घुटन भरे वातावरण से बाहर निकालने का प्रयास करें और खुली हवा में सांस लेने दें। उनके क्षितिज को उस नीले आकाश तक विस्तार दें जो सुनहरी रेत के ऊपर फैला है। ज्ञान के द्वार इन बच्चों के लिए खोल देने चाहिए व उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कवि यह मानता है कि वही लोग इतिहास रचते हैं जिनकी वाणी में सूर्य की ऊष्मा व शक्ति होती है।